Pastor Binay Khalko will be translating for you because I have some work because all are in the hospital, so I have to take care of my boy who is he at Okay. home. So brother Binay Khalko will be translating for you. Okay. Okay. Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm fine. Good. I love your hair. Thank you, thank you, thank you. I have another brother in India that I always tease that has that color hair. I love that. I think अच्छा. Okay, thank you. praise God. Praise God. How's everyone Praise. doing this morning? सब कोई यहाँ पर सब जितने भाई बहन अभी जो जूम भी जुड़े हैं, मास्टर जी पूछ रहे हैं कि आप लोग सब कोई कैसे हैं? Everyone doing well? हम लोग ठीक सब हैं. कोई अच्छे से हैं? Yeah, so we are all doing good. Yeah. I'm very sorry to I was very sorry to hear the news from Pastor Sagar yesterday about the young lady and her daughter and the things that are happening there in North India. I'm really urging the believers here to pray for your part of the world. मैं कल का जो वाकया हुआ हमारे नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में कि उस बहन को और उसके बेटी को जो गोली मारा गया है, उसके लिए मैं बहुत ही दुखित हूं और मैं चाहूंगा कि मैं अपने लोगों को आपके लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं उनसे चाहता हूं कि वो प्रार्थना करें. We're living in very challenging times right now. I believe that unfortunately not unfortunately on one side because Jesus is coming soon, okay? But unfortunately on the side that before Jesus comes, many wicked spirits have been released into the earth. ये बहुत ही दुख वाली बात है, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंजिंग बातें हैं कि ये अंत के दिनों में हम लोग इस तरह का सताहट पे जी रहे हैं. लेकिन ये दुर्भाग्य की बातें तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसके साथ ही साथ मैं दुर्भाग्य की बातें कहना चाहूंगा कि इस अंत के दिनों में हमें बहुत से सताहट से होकर गुजरना तो पड़ेगा ही. As the book of Revelation says, woe to the inhabitants of the earth, for Satan has come down to you with great wrath, knowing that his time is very short. प्रकाशित वाक्य में भी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस अंत के दिनों में जबकि बहुत से डेविल स्पिरिट को छोड़ा गया, शैतान को भी मालूम चल गया है कि अब उसका समय ज्यादा दिन नहीं है, अब उसका समय ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए वो जितना गुस्सा अपना एक तरह के अपना गुस्सा जो है अपना क्रोध को लेके वो सब मनुष्य जाति पर अपना उंडेल रहा है और इसलिए हमें इस सताहट से गुजरने के मुंह पड़ रहा है हमें. And it appears that we're nearing, if not entering, the final time of the beast and Satan's final attempt to hold on to the earth before Christ returns. और शैतान और जो दुष्ट पशु है उसका अब दिखाने वाला ही अब उसका दृष्टिगोचर होने ही वाला है, ताकि इस अंत के दिनों में जब हम पहुंच चुके हैं और इन बातों को हम जानने जा रहे हैं. And the scripture said, here it calls for the patience or the endurance of the saints. Many saints will unfortunately have to lay down their lives for their true faith in the true Messiah. और इस अंत के दिनों में वे जितने भी परमेश्वर के जन हैं, उसके दास हैं, उसके संत हैं, वे उनका जो सहन शक्ति है वो सहन शक्ति ही अंत तक हमें जब हम धैर्य के रखेंगे उस अंत के दिनों तक हम पहुंचने पाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है. And in the flesh, this is not an easy thing. I'm not going to make light of this like this is an easy thing in the flesh. It's not. But we have the promise that the Lord is with us all the time, all the way up until the very end of this wicked age. इस मनुष्य शरीर में हमें रह के, जब मांस रूप में शरीर में रह के, इस नश्वर शरीर में रह के हमें ये दुख को झेलना पड़ रहा है, ये झेलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें धीरज धर के प्रभु यीशु मसीह के इंतजार तो करना है हमें. And those of us who are truly in Christ, we can trust him. We can take refuge. We can take solace and hope and faith in the fact
that the Lord is protecting us and that He has a day when we're supposed to, change our location basically from this world into His world. और इस घड़ी जब जितने जो विश्वासी हैं वे उनको एक मौका मिल pardon, once again, can you repeat it, sir? Yes, the Lord has chosen a day for each of us who are truly His, when we will, I'm not thinking of the word right now, we will go into paradise, we will leave this world. प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए एक दिन ठहराया हुआ है और वो जब आएंगे तो हम सबको एक स्वर्गीय स्थानों पे ले जाएंगे और वहां पर, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ इस संसार में तो रहना है, लेकिन हमें इसी विश्वास के साथ रहना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय स्थानों पे ले जाने वाले आने वाले हैं. Amen. So we don't have to be afraid, and we don't have to let these things scare us or get us upset. इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ये बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले, ये बात को हमें याद रखना है. और ये हमारा जो दुख का समय है, एक दुख के बाद हमें एक खुशी का बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में जब होंगे, हमें बादलों पे उठा ले जाएंगे. ये हमें इसी को याद करके इस थोड़े समय के जो हमें दुख का है उसको हम बिताना है. हमें We can trust the Lord. We can trust the Lord with our lives. He has our life, He said, in His hand, and the Father has him in His hand, and no man or devil can pluck us out of God's hand. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथ में प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए वो जो जीवन है जो हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, उससे कोई भी दुष्ट शक्तियां, कोई भी दुष्ट शक्ति, शैतान उस जीवन को हमसे नहीं चुरा सकता. You know, the world right now is walking in so much fear and uncertainty. Some of the things they're fearing are real. Many of the things that they're fearing are not real, okay? Like this virus and things like this. It's all satanic plots to bring men under tyranny. आज के समय में बहुत से लोग डर और भय और बहुत से ऐसे बातों से आशंकाएं में जी रहे हैं, और वो ये जो डर है एक तरह का एक माने झूठा डर भी है और एक तरह से सच्चा डर भी है. झूठा डर कहने का मतलब है, तात्पर्य होगा कि ये जो वायरस है वो एक तरह का बनाया हुआ माने डर जो बनाया, माहौल को बनाया गया है, जो कि ये बिल्कुल तरह से एक झूठी बात है. But either way, we can trust the Lord to protect us and keep us and those who belong to us. Amen. आमीन. इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और वो हमें इन बातों से निश्चय बचाएगा हमें. So this is why this is so important, what we're learning here in our classes about what a true believer is, what a true born-again, spirit-inhabited child of Christ is. इसलिए आज का जो हम इस क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं, एक सच्चा विश्वासी उसे किस तरह से हमें रहना है, उस बातों को हम सीखने पाएंगे. जबकि एक सच्चा परमेश्वर के जब हम एक सच्चा विश्वासी के जीवन में क्या होना है, वो चीज को हम आज सीखने की कोशिश करेंगे. Because we're living in the day, and we looked at the scripture a few weeks ago, we're living in the day that Jesus prophesied of, where even supposed brothers and sisters in Christ will fall away from Him, their faith in Him, and will even betray the real believers. इसलिए हम लोग आज के ऐसे जीवन में हम जी रहे हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं कि बहुत से ऐसे विश्वासी जो इस विश्वास से भटक जा रहे हैं, और यहाँ तक कि ऐसे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को धोखा भी दे रहे हैं, और इस तरह की बातें हम आसपास में, अपने आसपास में लोगों में हम देख भी रहे हैं. So it's so important that we really understand what the Lord has taught us, Jesus Himself when He was on the earth, and what we have in the scriptures concerning what it really means to be born again of the Spirit into the true kingdom of God.
परमेश्वर के राज्य में सच्चे मन सही रीति से जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वो क्या सही है, मैंने सच्चाई है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे हम आज। It's so important that we understand the difference there, because many false converts, many false believers have entered the ranks of the church, which I've been teaching you about, and they are not real children of God, and they will betray the saints. और इसलिए आज के समय में ऐसे बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो सही मायने में वो बिल्कुल विश्वासी नहीं है, बल्कि वे एक झूठे विश्वासी के रूप में हैं, और वे जैसे झूठे विश्वासी कलीसिया में घुस रहे हैं और परमेश्वर के दास और उसके दास और दासियों को वे झूठ के द्वारा उसे भटका रहे हैं और उनको झूठ बोल बोल के उनको बहका रहे हैं। And it's also important that we confirm people, we genuinely confirm people in the true faith in this hour, because there is so much deception and so much falsehood. और इसलिए हमको आज ये जरूरत है कि ये एक सच्चा विश्वासी के रूप में हमें जानने की आवश्यकता है, और क्योंकि ये जो झूठे लोग हैं और झूठा डॉक्ट्रिन है, ये कहीं ना कहीं हमारे कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज को हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। Here in my country, it's like the Lord is allowing a division to come. The Lord is allowing people to be sifted, people to be tried. He's running people through a filter who claim to be Christians. और यहाँ मेरे देश में ऐसा परमेश्वर ने ऐसी अनुमति दी है कि यहाँ पर दो भाग ऐसा हो जा रहे हैं, और वे लोग कहीं ना कहीं किसी तरह से धोखा दे रहे हैं और कलीसिया में कुछ ऐसी गलत बातों को फैला रहे हैं, ताकि वो धोखा देने वाली आत्मा और जो झूठे विश्वासी हैं वे सब आके डिवाइड कर रहे हैं इस तरह की बातों को। And many are failing the test. Many are being shown for what they truly are and who they truly are, that they have not truly been born of the Spirit of God, that they are just religious people, that many of them have come to Christianity or to Christ for their own selfish reasons. और इसलिए यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ धर्मी कहलाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं है, परमेश्वर के द्वारा वो जन्म नहीं लिए गए हैं। वे सिर्फ अपना एक रिलीजियस जरूरतें हैं, उसको माने उनका कुछ ऐसा जरूरत है, उस चीज को पूरा करने के लिए वे चर्च में आ रहे हैं या कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन सही मायनों में वे विश्वासी नहीं है। And the Bible warns us about this in many places. The Bible tells us that there are false brethren, that there are false Christian movements, that there are false Christian leaders, wolves in sheep's clothing. इसलिए बाइबल में बहुत सी जगह में ऐसे लिखे हुए हैं कि भेड़ के रूप में भेड़िया छिपा हुआ है, और वे लोग बहुत से ऐसे आ रहे हैं, झूठे अगुए हैं, झूठे विश्वासी हैं, और ये सब आके सब चीज को गड़बड़ कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। बाइबल में हमें बहुत जगह में इस बातों को हमें पढ़ने को मिलता है। And we need to be aware of these things. And especially as Christian leaders, pastors, evangelists, teachers, we need to warn the people, and we need to teach the people correctly according to the true word of God. इसलिए हम जबकि परमेश्वर के दास दासियां, हमें इन बातों को हमें जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम जब जानने पाएंगे तभी जाके हम दूसरों को सिखाने पाएंगे, क्योंकि हम वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को जो लिखा हुआ है उसी बातों को हम उनको कहेंगे, तभी जाके हम इस सब भरमाने वाली बातें, झूठ बोलने वाली बातें जो अनेक से झूठे लीडर्स हैं वो आके जब करेंगे, तब उनसे वचन के द्वारा हम उनको झूठा ठहरा सकते हैं। The kingdom of darkness is swinging a double-edged sword.
On one side, Satan and his forces are persecuting the true believers, and on the other side, they are infiltrating the church, okay, this Christian system. They're infiltrating the Christian system with false doctrines, doctrines of demons and seducing spirits. और इसी तरह अंधकार की शक्तियां जो शैतान के द्वारा है उसका भी एक दो धारी तलवार के रूप में वो काम कर रहा है। जिस तरह एक तरह से एक धार में वो बताता है कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा जितने विश्वासियों को खत्म कर रहा है, और दूसरी धार में वो फॉल्स झूठा डॉक्ट्रिन सब है, जो सिद्धांत है, वो चर्च में कलीसिया में लाके वो सबको गड़बड़ करना चाह रहा है, और उसको झूठे बहुत से ऐसी कलीसियां खड़ी हो रही है जो झूठे कलीसिया के रूप में उनका डॉक्ट्रिन जो है वचन से बिल्कुल अलग है। ऐसी बातों को ला के वो गड़बड़ पूरा कलीसिया में गड़बड़ लाने की कोशिश कर रहा है। Unfortunately, most who claim to be Christians or be part of the church are falling for the deception, the false gospel, the false Christ, the church, the false representation of Christ's body. And those who the evil forces cannot deceive, then they turn on and they persecute. दुर्भाग्यवश ये बात है, हमारे चर्च के बहुत से आज के समय में अगुए लोग इस झूठे डॉक्ट्रिन और झूठे लीडर्स के झांसे में आ जा रहे हैं, और वे उन बातों को मानने लगे हैं और अपनी कलीसिया में उस चीज को फॉलो करने लग रहे हैं, और कलीसिया में बहुत से गड़बड़ियां दुष्ट शक्तियों को अपने कलीसिया में लेके आ रहे हैं, और इस झूठ के द्वारा वे इस गलत सिद्धांतों को जो एंटी क्राइस्ट के रूप में है वो ऐसा उनके जीवन में ऐसा हो रहा है। So we must know the true from the false. In finance, in banking, when they train the tellers, the people that work at the counter at the bank, they don't teach them about every counterfeit form of money. Once again, can you repeat it? When they train people at the bank who are going to give you your money or receive your money at the bank, they don't waste their time teaching you about every counterfeit bill because there are so many. इसलिए जैसा बैंक में रहता है, जो कैशियर जो होता है, जो आपका पैसा लेता है या आपको पैसा देता है, उनको ऐसा ट्रेनिंग, वो आपको कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं देगा कि जो गलत बिल है या कुछ जो ये गलत बातें हैं उसके ऊपर वो आपको देगा, मैंने उसको ज्यादा वो आपको बताएगा नहीं। लेकिन there are so many counterfeits and there are always new counterfeits being created. और बहुत से ऐसे गलत बिल या गलत ऐसे बातें रहती हैं, वो रहता है, इसलिए वो सबको उसके ऊपर बताएगा नहीं वो। So what they do is they teach the people the authentic bill. Yeah? And when they teach the people the authentic bill, then anything that is not exactly like the authentic bill, they know is counterfeit. इसलिए वो कैशियर क्या करता है कि उन्हीं को ही बता देता है कि ये गलत जो बिल है, जो ये बिल को उनको सिखा देता है कि अगर आपके हाथ में ये अगर आएगा तो आप ही इसको चेक कीजिए कि सही है कि गलत है, और अगर आप जानने पाएंगे तब जाके मेरे पास आएगा। मैं हर चीज को आपको नहीं बता सकता, सिर्फ ये बता सकता कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है। अगर ये आप जान जाएंगे तब जाके अपने आप ही आप ये चीज को परख पाएंगे कि सही बिल कौन है और गलत बिल कौन है। And it's the same with the true gospel of Christ. I don't need to sit here and teach you 50 different kinds of false gospels. But if I teach you the true gospel, then anything that comes as a false gospel, you will recognize immediately and dismiss it. इसलिए मैं यहाँ पर इस जूम मीटिंग में उस 50 तरह के गलत सिद्धांतों को नहीं सिखाऊंगा। अगर सिखाऊंगा, अगर आप वचन को अगर जानते रहेंगे, अगर मैं इस 50 तरह के गलत सिद्धांतों को सिखाऊंगा तो आप सांगे सांग उस चीज को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा करके। इसलिए आपको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आमीन। Amen. So last week we talked about what it really means to be born again of the Spirit according to Jesus.
पिछले सप्ताह हमने सीखने पाए थे कि पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म प्राप्त वो क्या है. We talked about the fact that this is a supernatural operation that comes from God. Only God can perform this. This is not a religious act that man can perform, and man cannot attain this merely by knowledge. जब उसमें हमने बताया भी था कि ये जो कार्य जो होता है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा नया जन्म प्राप्त करना, वो अलौकिक ऑपरेशन था, अलौकिक कार्य होता है. और उस अलौकिक कार्य में ये सब बातें होती है. सिर्फ एक धर्मी कार्य नहीं था जो मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो करता है. ये धर्मी बातें नहीं, बल्कि एक अलौकिक बातें परमेश्वर की थी. सुपरनैचुरल एक्ट होता है ये. This is important for us to understand because another gospel has crept in to the church, okay, that is based on knowledge, that is based from man's side, what man can do to attain this relationship with God, what man can do to attain things from God, so on and so forth. और चर्च में इस तरह की बातें जो सीखने मिलती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं करेगा, बल्कि ये अलग तरह का सुपरनेचुरल कार्य जो है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, अगर मैं अलग से थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन ये उसी तरह से हो सकता है कि आप अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को लगा के आप ऐसा कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं. In a very sneaky way, Satan has taken the focus off of the person of Jesus Christ and off of the supernatural act of the Holy Spirit and brought it back to a seeking of secret knowledge, okay? A system of beliefs, a system of spiritual practices that give man power to get what he wants. वो एक बहुत ही चालाकी, शैतान यहाँ पर एक कार्य कर रहा है बहुत ही चालाकी रूप से, जो मैंने अपने आंखों से दिखाई देने वाली बातों को करने की कोशिश कर रहा है, जो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जो मनुष्य महसूस कर सके, उन बातों को वो प्रकट करने की कोशिश कर रहा है. ये बहुत चालाकी ढंग से कोशिश करने, ये काम करने की कोशिश कर रहा है वो. For the last 50 years, doctrines have snuck in to the church. At first, they were in a corner. They were marginal. They were not the mainstream. But over the years, they've become the mainstream. And these doctrines pretend to recognize the Christ of Scripture, but their real motive is self-centered spiritual power and greed. आज से पहले ये डॉक्ट्रिन की बातें सिर्फ कलीसिया में कोने में रहती थी, लेकिन रहता था परमेश्वर की आराधना करने का वो चीज रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज अब सेंटर में आ गई है, और उसके द्वारा अब परमेश्वर के वचन को दूर करके सिर्फ अपना ही कार्य को अपने फायदे के लिए इस डॉक्ट्रिन को लाया जाता है, और डॉक्ट्रिन अब सेंटर में आ गया है और वचन को साइड कर दिया गया है. And I think it's a real tragedy that even in the third world countries, even in the very poor countries, these doctrines have infiltrated and got men to chase the things of the flesh, believing these lies from Satan that we can follow Christ in this world and still have everything that the world has. Once again, sir. Repeat it. Repeat it? Yeah. Okay. Even in the poor countries, okay? Yeah. Even in the poor countries, these doctrines have come into the churches and have Christians, especially the leaders, chasing fantasies, chasing greed,
chasing money, chasing pleasures of this world, only focused on the things of this world. And this is deceiving many people from the true path of Christ. आज के समय में ये डॉक्ट्रिन जो हो गया है, डॉक्ट्रिन को इतना ज्यादा महत्व देने लग गए हैं कि स्पेशली उस गरीब देशों में जो तीसरी दुनिया कहलाया जाता है, गरीब देशों में वहां के जितने भी अगुए हैं और वहां के अगुए लोग वो चमत्कार करो के उस डॉक्ट्रिन को सामने लाके और उसके पीछे संसार का जितने भी जो वैभव है, संसार के जितने भी सांसारिक बातें हैं, उसको पाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे हैं। जो सही उद्देश्य जो है, वचन है, ओके, उस डॉक्ट्रिन की ओर चले जा रहे हैं और प्रथम रख दे रहे हैं और अपना सिद्धांत और परमेश्वर काम को पीछे रख दे रहे हैं। The focus is no longer on the kingdom, the eternal kingdom that Christ is promising us, that he came to give us, but the focus is on the things of this world. And they've turned the kingdom of God into the kingdom of the flesh. And they've turned Jesus into a worldly kind of God who wants to give us the things of this world and has no concern about the next world. और इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर कि अब परमेश्वर के राज्य को नहीं करके बल्कि वो इस संसार के राज्य को, जो संसार में जिस तरह से भगवान को बना दिया गया है, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह हमारा है, उसका एक रूप अलग चेंज कर दिया है कि विश्वासियों को इस तरह से कहा जा रहा है कि तुम अगर इसमें आओगे तो तुमको यहाँ का, तुमको रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ मिलेगा। और इस तरह से वे भरमा रहे हैं और जो सच्चा जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार से भटका कर ये अगुए लोग कर रहे हैं, उस सांसारिक बातों को अपने जीवन में लाके, और यही बातें वो विश्वासियों को भी यही बातों को सिखा रहे हैं, ताकि ये परमेश्वर इस संसार का परमेश्वर है और ये परमेश्वर तुमको ये संसार की बातों को दे सकता है, ऐसा करके भरमाया जा रहा है। This new Jesus and this new gospel is about self-improvement, self-realization, self-advancement, about making you a better you. इस नई दुनिया में इस नए जीसस के बारे में अभी हमें सिखाया जा रहा है, जो बताया जाता है कि सिर्फ अपने खुदगर्जी के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना ही सब कुछ के लिए, ताकि हमारा ही बढ़ोतरी हो और दूसरे का नहीं है। इस तरह की बातों को सिखाया जा रहा है इस नए दुनिया में, इस नए तरह के बनाया हुआ जीसस को एक नया सुसमाचार हमको सुनाया जा रहा है। It's about mastering spiritual keys and spiritual laws and spiritual principles that will cause you to succeed in this life. The most popular teacher in my country, when he's gone all over the world, unfortunately, his best-selling book, Christian book, was Your Best Life Now. ऐसा इस तरह के बातों को सिखा रहा है कि मेरे देश में भी बहुत से ऐसे मसीह अगुए लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, जो दुनिया कोने कोने में जाके इस तरह के बातों को सिखा रहे हैं कि अभी ही वो सच्चा समय, अभी वो अच्छा समय है जिसके द्वारा आप जीवन के सबसे अच्छे समय को जी सकते हैं। इस तरह को उनको भरमाया जा रहा है। Can we have the people mute, please, so we don't have interruptions? कृपया करके जितना है और म्यूट कर देंगे ताकि I have muted. Except for the translator, if everyone would be so kind to mute. Okay. So, forgive me 1 second. This is actually occult teaching. This is actually occult teaching. This is Gnosticism. What is Gnosticism? Gnosticism comes from a Greek word, and it basically means the trust in secret spiritual knowledge. ये एक स्थापित सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, और इसको नास्टिज्म कहते हैं, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो कहता है कि एक सीक्रेट, एक रहस्यमय
डॉक्ट्रिन है, इसमें एक सीक्रेट पावर है जो हमको उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं. So even though most of them, some of the boldest now, they don't even mention Jesus anymore. They don't need to. The people are so deceived, they don't even need to talk about Jesus. But the best of them that even use the name of Jesus, Jesus has become a mantra. Jesus has become a spiritual guide. Jesus has become a spiritual guru, a key that opens the door to this secret knowledge to enter the spiritual realm and get the power to get the things you want in this world. अभी आज के वही जो बोल्ड लीडर या अगुए हैं, उनको वो यीशु मसीह को इस तरह से बना दिया कि उसको गुरु बना दिया, स्पिरिचुअल गुरु, ताकि उनके द्वारा आप सीक्रेट जो पावर है उसको प्राप्त करें. यहाँ पर इस तरह के बातों को वो आज के समय में सिखाया जा रहा है, और आप वही चीज को उस बातों में, सुपर नेचुरल बातों को आप अपने जीवन में कर नहीं पाएंगे अगर आप उसको इस तरह की बातों को आप अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं तब. Okay, and this masquerades under the names of prosperity doctrine, health and wealth gospel, word of faith gospel. Their faith is in their faith. Their faith is not really, if you dig under the surface, their faith is not really in the person of Christ. Their faith is in learning and mastering these spiritual systems. और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि वो उनका जो विश्वास है, वो अब विश्वास उस यीशु मसीह पर नहीं है, बल्कि उस चीज को प्राप्त करने का है जो सिर्फ हम एक तरह से जब गड्ढा खोद रहे हैं लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं. Because their goals are not for the eternal kingdom. Their goals are to achieve in this temporary fleshly world. So they want to, like a magician, like an occult witch, they want to enter into the spiritual realm and attract those things to themselves that they want in the flesh. But this is going under the banner of Christian faith. और यहाँ पर इस तरह की बातों को जो हो रहा है कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो जैसा मैजिशियन काम करता है कि वो या कह दीजिए कोई दुष्ट शक्तियों को प्राप्त अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ताकि वो सारी शक्तियां, ताकि वो सारे संसार का जो वैभव है या उसका जो धन संपत्ति है उसको प्राप्त करने पाए इसी सांसारिक जीवन में. और हम जो अपना जो सही जो अनंत जीवन का जो बातें हैं उसको छोड़ के दूसरों के लिए वो काम करने शुरू कर दिया लोग. And most who claim to be Christians in the first world, mainly the Western world, they believe some form of this false gospel, and they think this is the real gospel and the real Jesus. और अभी आज के समय में वो माने जो जिसे कहते हैं पहला दुनिया, माने यूरोपियन कंट्री या जो पहला और भी ऐसे जहां पर इस गॉस्पल पर वो बहुत ज्यादा माने आकर्षित हो रहे हैं और इसे बहुत ज्यादा मान भी रहे हैं. And this is not the real gospel, and this is not the real Jesus, and this is not what the scriptures teach. I can't hear you, brother. Are you muted? ब्रदर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सबको. ब्रदर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. हेलो ब्रदर, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. हेलो, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ब्रदर. ब्रदर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, आई थिंक ब्रदर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. तरुण, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ब्रदर आपका आवाज दे रहा है सबको. कैन यू जस्ट गिव हिम द मैसेज तरुण? ब्रदर, विनय ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा आप सभी को. हाँ, आ गया. अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है. हाँ, ठीक हो. प्लीज. Are you ready? Yeah, yes. Okay.
So not only the people that are chasing after money and the things of this world, but this has even affected the actual message about salvation for the whole church. यहाँ पर इस बात को हम देखना चाह रहे हैं कि सब इस संसार में जो बातें हो रही है उस मनी के पीछे, उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उस सुसमाचार के पीछे भागने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है. Even those who are not chasing after the earthly things of this world and so on, and are interested in the spiritual things and the eternal things, they have been taught a false gospel that is based more on knowledge than it is on the supernatural power of God. यहाँ तक कि जो इस सांसारिक बातों पे जो रुपए पैसे के ऊपर जो नहीं भाग रहा है, लेकिन वे लोग भी ऐसे हैं जो इस फॉल्स डॉक्ट्रिन में उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं और सच्चे सुसमाचार से वे पीछे रह जा रहे हैं. I want you to pay attention to the next thing I'm about to say, because it's very subtle, but it's very important. मैं अभी दूसरे जो अभी मैं बोलना चाह रहा हूं उस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए, वो बहुत ही एक विशेष बातें हैं. There's a big difference between believing in Christ and being in Christ. यहाँ पर ये दो चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा अलगाव है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह में विश्वास करना, ये दो अलग-अलग बातें. I'm going to repeat that. There's a big difference between believing in Christ and being in Christ. इसमें मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु में विश्वास करना दो अलग चीजें. A religious person who's still living according to their flesh can believe in Christ. They can believe the facts about Christ, that Christ came, that Christ died on the cross for our sins, that Christ rose from the dead. एक धर्मी जन जो होता है वो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास कर रहा है, वो उस सुसमाचार, सच्चे सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन में जी उठा, ये इस सुसमाचार पर भी विश्वास करता है. But just believing these things doesn't cause us to have the supernatural transformation that causes us to be in Christ. सिर्फ विश्वास करने के द्वारा नहीं, लेकिन हमें उसमें विश्वास करके उसमें बढ़ने की आवश्यकता है. The scripture says in the letter of James in the New Testament, even the devils believe the truth about Christ and they are fearful and they tremble. यहाँ तक कि शैतान भी उस सुसमाचार पर विश्वास करता है जो याकूब के पत्री में लिखा है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसको उसके नाम को सुनकर थर-थर कांपता है और डरता है. Yet we would not believe that the devils are born again of the Spirit. Once again, sir. We would not believe, however, that devils are born again of the Spirit of God. इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि शैतान नया जन्म नहीं पाया हुआ है, हम इस बातों को विश्वास करते हैं. So what does this mean to believe in Christ? Because most Christians, they claim to believe in Christ, to believe in who Christ is, to believe in what Christ has done, but this is not a supernatural transformation performed by the Spirit of God. ये हमारे जीवन में ये जो विश्वास, can you repeat it once again, sir? Most professing Christians claim to believe the truths about Christ, about who he is, the Son of God, about what he did, dying on the cross for our sins and rising from the dead. They claim to believe these things. But just believing these things does not mean they've been supernaturally transformed by the Spirit of God.
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर देना कि विश्वास कर लेना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे स्वर्ग तीसरे दिन में से जी उठा, इस बातों पर सिर्फ विश्वास करने के द्वारा ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में एक अलौकिक बातें, एक बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। But this new gospel, which I call the sinner's prayer gospel, that's been going on for at least the last 50 years, doesn't require people to have a supernatural experience. It only requires people to believe the facts about Jesus and confess the facts about Jesus. लेकिन इस नए सुसमाचार में जब आज के समय में सुन रहे हैं, तो सिर्फ मैंने आपको उस सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस से गुजरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और पापों को अंगीकार करना है। इस बातों पे बात किया जा रहा है। Yes, we learned a couple of weeks ago from the scripture in the book of Acts what is required for a person to come into the kingdom of God. Maybe someone can read that again for us. Acts chapter 2, verses 37 through 39. कोई एक जन अगर किन्हीं को होता है तो वो एक्स प्रेरितों काम 2 उसका एक्स 2 वर्स 37 through 37 7 to 39. एक आदमी हिंदी में पढ़ लीजिए। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय का 37 से लेके 39 तक। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो भाई। 37 to 39 स्टार्ट करना। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, वर्स 39 ना? Yes, please. I'm sorry. I thought you were finished. Go ahead. ओके ओके। आगे जा 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन। Amen. So here we see a supernatural situation. This is when Jesus sent the Holy Spirit from heaven. These 120 followers of Jesus were all supernaturally possessed by the Holy Spirit. यहाँ पर एक अलौकिक बातें हुई हैं, सुपरनेचुरल कार्य, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा और 120 लोगों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी। यहाँ पर एक अलौकिक बातें हुई हैं यहाँ पर। Yes. हम देखने पा रहे हैं। The Holy Spirit came upon them from heaven. He came into them and he transformed them. यहाँ पर पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरता है और उनके ऊपर में और उन पर उतरता है, और वो उनको एक पूरी तरह से एक बदलाव वाला जीवन उनको एक परिणत कर देता है उनको पूरा। And it was evidenced by supernatural activity. They spoke in heavenly tongues, they prophesied, and later on they did the very miracles and works of Jesus. और ये एक गवाह होते हैं कि वहां पर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में
बातें करते हैं और वहां पर एक सुपरनेचुरल कार्य को भी जो यीशु मसीह कार्य को आगे चल के वो भी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, सुपरनेचुरल कार्य को उनके द्वारा भी वहां पर होने लगती है। And the people recognized this. The people recognized that there was something beyond earthly going on. And they cried out to Peter and they said, "What must we do to be saved?" इसलिए यहाँ पर जब इस बातों को जो लोग देखते हैं कि वहां पर इतना सुपरनेचुरल कार्य होता है, तो इन बातों को देख के पतरस से वे लोग भी कहते हैं कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। In today's church, and most of today's church, the answer for these people would be, okay, say this prayer with me. I accept Jesus into my heart. I believe in Jesus. And because I accept Jesus into my heart and I believe the facts about Jesus, I am born again. इसलिए आज के समय में बहुत से ऐसे कलीसिया में और इस समय में बहुत से ऐसे कलीसिया में हो रहे हैं कि वो अगर उनको इसी तरह से अगर पूछे जाएंगे तो आज के अगुए लोग आज हेलो Somebody's not muted. Mute, please. अपना थोड़ा सा कोई म्यूट कर दें, कोई बोल रहे हैं तो आज के कलीसिया में अगर इसी तरह से अगर विश्वासी लोगों को अगर पूछे कि हम क्या करेंगे, तो वहां के हो सकता है वहां के बहुत से अगुए इस तरह से करेंगे, मेरे साथ ये प्रार्थना करो कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें अपने पाप को अंगीकार करता हूं और मैं इस तरह के बातों को कह के आपका सारे पाप क्षमा हो गया, इस तरह से आप मैंने कह के आप आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह कहेंगे। This has been called the sinner's prayer, and this was made popular by evangelists in the 20th century who held evangelistic crusades, and at the end of their preaching they would invite the people to come forward and they would say this prayer with people, and they believed by people simply saying this prayer about their belief in Jesus that they were born again. इसलिए ये इस तरह का जो सुसमाचार जो हुआ अभी ये 20वीं शताब्दी में ये आज बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है और ये जितने भी इवांजलिस्ट हैं इस तरह के जब क्रूसेड करते थे, प्रार्थना सभा लेते थे, वहां पर इस तरह से प्रार्थना के अंत में सबको बुला के ये जो पापियों के लिए जो प्रार्थना है इस तरह का वो बोलते थे, अंगीकार करने के लिए कहते थे और ये आज के रूप में बहुत ज्यादा चलन में आ गया था। सिर्फ अंगीकार कीजिए और आपके जीवन में सब कुछ एक नया जीवन आप नया जन्म प्राप्त कर जाएंगे आप। Yet time has proven that most of these people were not transformed by saying this prayer. For instance, the most popular evangelist of the 20th century, Billy Graham, used to use this prayer at the end of his meetings. बहुत से इवांजलिस्ट और खास करके बिली ग्राहम भी इस तरह के प्रार्थना को वो करवाते थे और लेकिन समय के समय जब हम उसको ऐसे विश्वासी को जो इस तरह के प्रार्थना को करते थे, लेकिन उनके समय में रहते हुए उनका जीवन जैसा बदलना चाहिए, एक सुपरनेचुरल परिवर्तन होना चाहिए वो, लेकिन वो परिवर्तन उनमें नहीं आया, हम देख नहीं पाते हैं। Yet statistics show that 95% of the people who said this prayer at Billy Graham's crusades years later were not walking with Jesus. इस तरह के जो प्रार्थना बिली ग्राहम करवाते थे और वे लोग अंगीकार भी करते थे, तो प्रार्थना करते भी थे, लेकिन उनमें से ज्यादा 95% 95% लोग जो कुछ समय बीतने के बाद वे फिर प्रभु यीशु मसीह में चलना छोड़ दिया और वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं चले। अब Why is this? This is क्यों ऐसा क्यों हुआ? This is because go ahead. these people were not supernaturally transformed. They were not born again of the Holy Spirit by simply saying a prayer, even if it was a prayer of repentance. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि वे
सिर्फ ऐसा प्रार्थना करके उनके जीवन में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि सिर्फ सिंपली एक पापियों की प्रार्थना करके उसमें जो अभी जो हमने अभी वचन पढ़ा, वचन में एक सुपर नेचुरल कार्य हुआ और उनको पूरी तरह से बदल दिया, अलौकिक बातें होके उनका जीवन बदला। ऐसा बदलाव उनमें नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा प्रार्थना उनके जीवन को थोड़ी समय के लिए बदला, लेकिन आगे चल के पूरी तरह से एक सुपर नेचुरल तरीके से नहीं बदलने पाया। Now, where did these evangelists and pastors and church movements get this idea that all someone needs to do is believe in their heart and confess with their mouths through a prayer in order to be saved or be born again? Where did they get this idea? और ये इस तरह का जो प्रार्थना का जो आइडिया है, वो कहाँ से ये जितना चर्च में जो मूवमेंट आया, ये आंदोलन जो हुआ, बहुत बड़ा सेवकाई हुआ और क्रूसेड में जो इवांजेलिस्ट और अगुए लोग करते रहे, ये सिंपल प्रार्थना जो करके उनका जीवन को परिवर्तन करने वाली बातें थी, ये इसका आइडिया वे कहां से पाए? They got it from this scripture I'm going to show you. और वे इस वचन के द्वारा वो प्राप्त किए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Okay. Romans 10, 8 through 10. रोमी 10 I have it up on the 8 से screen in 10। English. Romans 10, 8 through 10. रोमी की पत्री 10वां अध्याय उसका 8 से 10। कैन समरी रीड? कोई पढ़ सकता है? कोई पढ़ सकता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। चैप्टर ओके 10 वर्स 8 to 10। Yes. जल्दी पढ़िए। परंतु ओके आई एम रीडिंग। ओके, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8 to 10। Correct. परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। Amen. No apostle or writer of the scripture has been more taken out of context or misquoted than the apostle Paul. हाँ, और यहाँ पर जितने भी पास्टर हैं इस वचन के द्वारा इस कॉन्टेक्स्ट जो लिया गया है उसको एक गलत इंटरप्रेट करके उसको लिया। जो पौलुस हमें सिखाना चाहता था वो बातों को नहीं, बल्कि दूसरी बातों को वो यहाँ पर गलत इंटरप्रेट करके यहाँ पर सामने रखा गया। For 2,000 years, the apostle Paul's letters, things written in the apostle Paul's letters have been twisted and taken out of context to justify all type of religious beliefs. 2000 वर्ष पहले लिखी गई पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया इस वचन को बहुत से लोग उसको बहुत से तोड़ मरोड़ कर उसको जिसका जो सही अर्थ है, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटका कर अपने हिसाब से इसे बताया गया और इसे तोड़ा मरोड़ा गया इस वचन को। So what error did these evangelists and pastors and so commit with this portion of scripture? Well, the error that they committed is they interpreted this as a one-time event. तो वो जो 20वीं शताब्दी के जितने भी इवांजेलिस्ट या अगुए थे, वे इस वचन को जब लिखने किया जो इस वचन को एक अंगीकार जीवन को परिवर्तन, नेचुरल परिवर्तन हो जाए, उन्होंने ये यहाँ पर क्या गलती की है? That if a person is at, for instance, at a Christian meeting and they hear the gospel and they respond to the gospel
and at that moment they believe in their hearts, and at that moment they confess with their mouth that Jesus is Lord, then they are saved. They are born again. That's all they need to do. इसलिए ऐसे बहुत से विश्वासी जो एक समय खाली सिर्फ एक प्रार्थना सभा में जाके इस वचन को सुनकर और अंगीकार करके कि प्रभु यीशु मसीह है और उसके द्वारा ही मेरा जीवन बदल गया, पूरी तरह से बदल गया, इस बातों को बस इतना कहना था और उसके बाद में बदल गया उनका जीवन, ये बात इतना कहना काफी नहीं है. And many Christian movements preach that once somebody does this, one time, once somebody makes this confession one time, they can never lose their eternal salvation, no matter what. It's sealed, it's done. One second, sir. Actually, sure. I can't hear it. Yeah. You need me to repeat? Please repeat it, sir. Yes. There are many Christian movements who believe that when somebody does this one time, believes in their heart, confesses with their mouth that Jesus is Lord, that they are not only saved, but they can never lose that salvation, no matter what. Their salvation is guaranteed. और ये एक दफा इस बहुत से आज ऐसे मसीह लोग, उस समय भी मसीह लोग थे कि एक बार इस प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिए, अपने मुंह से कन्फेस कर लिए, अंगीकार कर लिए, और एक बार ही ये अंगीकार करने के द्वारा उनका जीवन बच जाएगा, उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे और उनके लिए अनंत जीवन उनके लिए सुरक्षित हो गया है, ऐसा वे सोचते थे. But any honest study of the rest of the New Testament alone proves this not to be true. Jesus himself said it, the other apostles said it, that we must endure to the end with our faith. We must keep the faith that we had at the beginning until the end in order to be saved. यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये विशेष करके कहना पाए ये बातें कि यहाँ तक ही खत्म नहीं होती है, ये हमारा विश्वास अंत तक बना रहेगा, इस पर बना रहेगा, तभी जाके हमारा जीवन हो पाएगा. बाकी अगर एक बार सिर्फ हम इसको अंगीकार कर लें कि हमारा जीवन सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास अंत तक बना रहना चाहिए. It is not a one-time agreement with the facts about Jesus and a one-time profession of belief in the facts about Jesus. It's much, much more than that. It requires a supernatural transformation from heaven. ये सिर्फ एक बार का अंगीकार का बात नहीं है कि एक बार आपने अंगीकार कर लिया और आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको अगर पूरी सुपर नेचुरल कार्य अगर आपके जीवन में पूरा परिवर्तन होना है तो उससे आपको बनाए रखना है, उस विश्वास को बनाए रखना है, उस विश्वास में चलना है और अंत तक इससे बने रहना है. So many of the churches who claim to have broken away from the Roman Catholic Church, for instance, or the Eastern Orthodox Church, are really practicing the same type of belief. They say a prayer. Through that prayer, they're absolved of their sin, and their attendance in church, their faithfulness to the church, secures their salvation. रोमन कैथोलिक से जितने भी लोग अलग हुए और उस चर्च में भी हम देखते हैं कि इसी तरह की प्रार्थना किया जाता है और वे चर्च के प्रति इस प्रार्थना को करते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन बदल गया है, हमको अब उद्धार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. For instance, when someone goes to the Roman Catholic priest to confession, it's called confession. They go to the confession to the Roman Catholic priest, they confess their sins. The Catholic priest says, okay, say 5 Hail Marys or whatever, and they are forgiven of their sin. रोमन कैथोलिक में भी वही होता है कि आप फादर के पास जाते हैं और अपना कन्फेस करते हैं सिन को और 5 दफा उसको बोलते हैं मैरी के नाम से ये हो जाए और आप उसके बाद में सोचते हैं कि आपका पूरा जो पाप है खत्म हो गया. इस तरह से, बस इस तरह से करना पड़ता है रोमन कैथोलिक में.
The sinner's prayer is basically the same principle. Say this prayer with me, ask Jesus to forgive your sins, and you will be born again. वो जैसा रोमन कैथोलिक में किया जाता है कि वहां पर जाके कन्फेस करो, बस एक बार कन्फेस करो तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उसी तरह से सिनर्स का जो पाप अंगीकार का जो प्रार्थना है ऐसा करके वे कहते हैं कि एक बार प्रार्थना करो और आपका जीवन बच जाएगा। जैसा रोमन कैथोलिक में होता है वैसे ही आज के समय में अन्य संस्था में भी, अन्य चर्चों में, कलीसिया में भी हो रहा है कि आप एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि मेरा जीवन बच गया है, मैं प्रभु यीशु मसीह को मान गया हूं और आपका जीवन बच जाएगा, उद्धार के लिए बच गया, आपका अनंत जीवन के लिए आपका जीवन सुरक्षित हो गया। This is ऐसा the सोचते हैं सभी gospel. लोग। This is the gospel that the church overall, the Christian church overall, has been preaching and practicing for the last 50 years at least. और इसी तरह की प्रार्थना को, इसी तरह के डॉक्ट्रिन को वे आज से पिछले 50 सालों से हर एक मैक्सिमम चर्च, कलीसिया, क्रिश्चियन से मसीह चर्च इस तरह के अंगीकार को कर रहे हैं और इसी पे ही चल रहे हैं और इसी को विश्वास कर रहे हैं। But let's compare that now with the Apostle Peter's answer to the people when they asked him, "What must we do to be saved?" यहाँ पर हम उसके साथ में जो पतरस ने जो उत्तर दिया उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे, उसके साथ में हम उसको देखेंगे कि वो जो जब लोगों ने पूछा कि हमें क्या करें कि हमारा जीवन, हमारा उद्धार हो पाए, तब वो उसका उत्तर दिया, उस उत्तर को हम कंपेयर करेंगे। Peter doesn't simply say this prayer with me now, believe in your heart and say this prayer with me now and you will be saved, you will be born again. Peter doesn't say that. पतरस लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे साथ में ये प्रार्थना करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और अपने पापों का अंगीकार करता हूं और उसके बाद तुम्हारा जीवन बच जाएगा, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। इस तरह से पतरस ने कभी नहीं कहा। Peter says, repent. That's the first point. Repent. Turn around. Forsake your sin. Turn your back away from the way the world lives. लेकिन यहाँ पर पतरस ने सबसे पहला कहा कि पश्चाताप करो। सबसे पहला उसका जो जवाब था, पश्चाताप करो और अपने जितने भी पापमय बातें हैं उससे बाहर निकलो, उससे फिर जाओ, अपने मन को फिरा लो। ये सबसे पहला दूसरा बात है उसने कहा। और जो विकट संसारिक बातें हैं उस संसार से आप निकलो। Second point, Peter says, and be baptized in water for the washing away of your sins. और दूसरी बात है जो पतरस ने कहा कि बपतिस्मा लो ताकि जो भी जितना भी तुम्हारा पाप है उस पानी में धुल जाए, इस पानी में खत्म हो जाए। We don't have time, but Romans 6 says we are buried with Christ in baptism. The old man dies and the new man is risen to spiritual life in Christ through water baptism. आप प्रेरितों का काम 6 में इस बातों को दिया, हम लोग उस बातों को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां पर यह क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में मारा जाना है, गाड़ा जाना है और उसमें से फिर जी उठना है। इस बातों को हम रोमी के पत्री में भी हम पढ़ते हैं। Those who preach the sinner's prayer, even if they do practice water baptism, they really see that only as a testimony, only as a ritual, only as a way to join the church. अगर कोई विश्वासी या कोई चर्च में इसी तरह के प्रार्थना जो पाप अंगीकार वाला प्रार्थना जो करते हैं, तो वो जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो सिर्फ एक गवाही के लिए इस बपतिस्मा को इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह में मैंने बपतिस्मा प्राप्त किया। एक ट्रेडिशन है, एक संस्कार है, उस नाम को ही लेके ये लोग चलते हैं। They don't see it as a supernatural act of God that's literally washing away a person's sins. वे कभी भी इस बपतिस्मा लेने की प्रक्रिया को एक सुपरनेचुरल या अलौकिक बातों के रूप में वो कभी भी नहीं लेते हैं। ये सिर्फ एक संस्कार के नाम पे, एक रिचुअल के नाम पे, इसको जो संस्कृति जो कस्टम है उसके नाम से इसको लेते हैं, बल्कि एक सुपरनेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सुपरनेचुरल एक परिवर्तन हो रहा है, उस तरह से वो कभी भी विश्वासी नहीं लेता है।
Therefore, many Christians have even come to believe that water baptism is totally unnecessary. All they needed to do was pray the sinner's prayer and they were saved. They don't need to be baptized in water. इसलिए बहुत से विश्वासी को ये मन भी है और वे कहते भी हैं कि मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पाप अंगीकार कर लूंगा तब मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह का उनका सिद्धांत बन चुका है, वे इस तरह से विश्वास भी करते हैं। Yet the Apostle Peter tells us this is absolutely necessary. So repentance and water baptism, listen well, repentance and water baptism prepare us to receive the kingdom of God. इसलिए पतरस ये भी कहता है, जो इस बातों को लेकर चलता है कि पश्चाताप कीजिए और बपतिस्मा लीजिए, बपतिस्मा प्राप्त करें, तभी जाके आपके जीवन में आप तैयार होने पाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। But we still haven't received the kingdom of God. Peter and the other believers had repented already. They had been baptized in water already, but they didn't receive the kingdom of God, the Holy Spirit, until the Holy Spirit came on them on the day of Pentecost. इसलिए पतरस और उसके और भी ऐसे लोग थे, ये बातों को कर चुके थे, बैप्टाइज भी ले चुके थे और वे बैप्टाइज लेने के बाद में भी पश्चाताप भी किए, लेकिन वे पवित्र आत्मा के सामर्थ से नहीं भरे थे, क्योंकि उस समय तक जब तक पेंतेकोस्त का दिन नहीं आया, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ सब पर उतरी, तब जाके एक सुपर नेचुरल तब जाके एक अलौकिक परिवर्तन उनके जीवन में आने पाया। That's when this supernatural operation from heaven was completed. And that's what Peter says. Repent, be baptized in water, and receive the gift of the person of the Holy Spirit. इसलिए यहाँ पर पतरस ने वही कहा कि पेंतेकोस्त के दिन में उसमें वहां पर वो कहा, पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तब जाके सुपर नेचुरल बातें जो पवित्र आत्मा के सामर्थ वो उन पर उतरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और ये एक सुपर नेचुरल एक अलौकिक कार्य वहां पर हुआ इन दो बातों करने के द्वारा। So we'll end with this question today. We will end with this इसलिए question. आज हम एक प्रश्न के साथ मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। How many एक people, प्रश्न करते हुए मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। how many people all over the world professing to be Christians, even professing to be born again Christians, have had the three elements of this supernatural experience that the Apostle Peter tells the people they need to have to be saved? यहाँ पर वो प्रश्न जो है, जो आज के समय में कितने ऐसे विश्वासी या कितने ऐसे लोग हैं जो तीन बातों को जो हुआ, पतरस जो यहाँ पर कहा, पहला पश्चाताप, दूसरा बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म लेना, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा से भरना, ये कितने विश्वासी के जीवन में हुआ है ताकि वो सुपर नेचुरल एक्टिविटी को महसूस करने पाए? Very few. बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, Very few. बहुत ही कम लोग हैं। And that's why we don't see much power of God in the churches. This is why we see so many people not walking a strong walk. This is why we see the great falling away, because these people have not truly been born again of the Spirit from heaven. They've just professed a religious belief in the facts about Jesus Christ. इसलिए आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं इन बातों को अपने जीवन में नहीं लिए हैं, और वे पवित्र आत्मा के सामने तीन बातों को अपने जीवन में लिए, उनके इसलिए उनके जीवन में ये आज बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से विश्वासियों में ये बातें दिखाई नहीं देती है, और इसलिए वे पवित्र आत्मा के सुपर नेचुरल कार्य उनके जीवन में नहीं हो पाया, और वे अपने आप को मसीह तो कहते हैं लेकिन इन बातों को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अंगीकार करके, पश्चाताप करके बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म और पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। इसलिए आज बहुत से लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग
मसीह में हैं लेकिन मसीह के नहीं कहला पाते हैं, मसीह के साथ नहीं चल पा रहे हैं। So in closing our lesson today, I will make this statement. The sinner's इसलिए prayer, आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। the sinner's इसलिए prayer, मैं यहाँ पर आज समाप्त करना चाहूंगा। the sinner's यहाँ पर prayer, समाप्त करना चाहूंगा। the और sinner- जो पाप अंगीकार है, पाप का जो प्रार्थना है, उसके बारे में कह के कुछ प्रार्थना करना, उसके बारे कह के मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। the sinner's prayer, instead of being the means by which we come to salvation, is actually a false teaching. It's an apostasy that keeps us from coming to salvation. इसलिए ये जो पाप अंगीकार का खाली सिर्फ कह के अपने जीवन को बदल देना, ये जो है, ये एक सिद्धांत जो है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये एक गलत और झूठा डॉक्ट्रिन है। इसके द्वारा आपका जीवन नहीं बदल सकता और इसमें आप सुपरनैचुरल बातों को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। कि आप सिर्फ अंगीकार कीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा। So I encourage you this week to listen to this again. This is recorded. It'll be up on Facebook. Look at the scriptures we looked at, especially as pastors, and ask yourself, am I preaching and practicing the true gospel of Jesus Christ? इसलिए मैं इस सप्ताह में जो ये वचन जो है, मैं जब YouTube में भी अपलोड कर रहा हूँ, तो क्या ये जो आज हमने जो सीखा, जो वचन को सुना, आज जबकि आप पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दासियां हैं, तो क्या आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि मैं सही वचन को पढ़ रहा हूँ और सही चीजों को मैं बताने पा रहा हूँ? ये चीज को आप अपने आप से पूछिए जो आप आज सीखे हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Okay, we'll leave it there for this week, and I look forward to being with you all again next week. Pastor Cigar, I'll turn it over to you. Yeah. Thank you, Dr. Danny. इसलिए मैं यहाँ पर आप समाप्त कर रहा हूँ। Thank you, Dr. Danny, for the wonderful teaching, and Brother Binay, thank you so much for the wonderful the interpretation. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक बातें मुझे पसंद आया है, डॉक्टर डैनी ने बोला, बिलीविंग एंड बीइंग इन क्राइस्ट इज डिफरेंट। प्रभु में विश्वास करना और प्रभु में बने रहना अलग बात है। समझ में आए? हम लोग, बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु में बने नहीं रहते हैं। तो इसीलिए उनके जीवन में आशीष है, सुपरनैचुरल आशीष है, उनके जीवन में नहीं होती है। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, प्रभु में विश्वास करना अलग बात है और प्रभु में होके जीना अलग बात है। सो हमें ये दोनों करने की जरूरत है, प्रभु में विश्वास भी करना और प्रभु में होके भी जीना। और ये बात अपने विश्वासी लोगों को सिखाना चाहिए। केवल ये सिनर प्रेयर के तरह नहीं, एक बार बस अंगीकार किया, बस हो गया, हमारा उद्धार हो गया, हम लोग बोलते, लेकिन हम लोग प्रभु के अनुसार चलते नहीं है। सो इसीलिए प्रभु में विश्वास भी करना है और प्रभु में हमें अपने जिंदगी को भी बिताना है। सो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, प्रभु में विश्वास करना अलग है, प्रभु में होके जीना अलग है। सो ये हमें लोगों को प्रभु में होके जीना सिखाने की जरूरत है आज आपके और हमारे विश्वासियों को। ना केवल प्रभु में विश्वास करो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं, प्रभु में जीने के लिए हमें सिखाने की बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डैनी फॉर द वंडरफुल टीचिंग। और मैं अभी नेपाल के लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग के लिए बहुत रात हो जाता है, क्या हम ये प्रोग्राम 7 बजे चालू करें? 7 से लेकर 8:30 बजे। Amen. Thank you very much, folks. You have a wonderful evening, and we'll see you next week. Okay, Dr. Danny. Okay. Or did you need something else? Were you asking for questions or anything? Yeah, today I think already I'm just asking with them if there is anything. Okay, I'll wait. If someone has a question, or I'll wait. So हमें क्या करो, 7 बजे शुरू करो या 7:30 बजे शुरू करो? 7:30 बजे राम्रो छ सर। 7:30 बजे करो? 7:30 7:30 देखि 7:30 राम्रो। 7:30 देखि 9 बजे। हजुर हजुर 9 बजे। यस्तो हुन्छ कि खाना खाने टाइम हुन्छ किन 7 बजे यतातिर अलि उज्यालो। एमडी सर खाना खाने टाइम तपाईँ कतिखेर हुन्छ ओबेद दाइ? त्यही टाइममा हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी ढिलो हुन्छ कि हाम्रो
के हैन तपाई भिडियो बन्द गरेर खाना खान हो सक्नुहुन्छ नि त्यही गरिरहेछ हामी त्यही गर्छ किनभने काम गर्दा गर्दा हामीलाई ढिलो हुन्छ Yes, yes, त्यसले yes. गर्दा चाहिँ अनि खाना खाने टाइममा यता सुरु भएको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा म त्यसै गर्छु भिडियो सागर सर हाँ, हेलो हजुर टाइम हजुर सेम त्यही ठिक भन्नुहोस् छ लगभग भन्नुहोस् विक्रम मलाई यो नाम ठिक हो किनभने 7:30 मेरो टाको तपाईको 6 बजे 6:30 बजेसम्म त मेरो यहाँ टिचिङ अहिले दिनु छ कि अच्छा अच्छा अनि कारण मेरो टिच छ यहाँनेरि शिक्षाका कार्यक्रम हुन्छ मैले विश्वासीहरूलाई दिनुपर्ने म त यही 8 बजेको ट्याक्क तपाईँ त्यहाँ सकिन्छ ठ्याक्क खाना खाएर ठ्याक्क 8 बसेको छु कि अच्छा अच्छा ल ठिकै छ हामी त्यही कन्टिन्यू गर्नेछौँ ओके सो सबको प्रभु यीशु के नाम में फिर से जय मसीह और हम लोग नेक्स्ट बुधवार को भी हमारा एक मीटिंग है मुझे मालूम नहीं कौन प्रभु का दास आएगा लेकिन हम लोग आशा करेंगे एक अच्छा प्रभु का दास आके हम बुधवार हमारे संगति में प्रभु का वचन देगा बोल के सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर डैनी कैन यू जस्ट प्रे फॉर सिस्टर सलमीना एंड द न्यूबॉर्न बेबी and also you pray for all the pastors and their families and their churches हाम्रो नेपालको नि प्रार्थना गरिदिनुहोस् yeah नेपालको लागि please pray for एउटा प्रार्थना विषय छ नेपाल अहिले पशुपति विकास कोष भन्ने छ एउटा नेपालको हिन्दू संगठन जसले 10,000 जवानहरूलाई परिचालन गर्दैछ महिनाको 25 देखि 30,000 स्यालेरी दिएर अच्छा त्यो चाहिँ सिर्फ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हैन क्रिस्चियनको विरुद्धमा क्रिस्चियनहरूलाई सताउने चर्चमा बमबारी गर्ने तोडफोड गर्ने भौतिक सम्पत्ति नोक्सान गर्ने पास्टरको परिवारलाई मार्ने त्यस्तो उनीहरूले परिचालन गर्दैछ पशुपति विकास कोषले स्यालेरी दिएर 25,000 देखि लिएर 30,000 सम्म त्यसले गर्दा यो चाहिँ हैन योजना उनीहरुको विफल होस् भनेर प्रार्थना yeah Dr. Danny, there is one important prayer request another from Nepal. There is one organization in Nepal, they are hiring the unemployed young people and paying them salary to just destroy the church and beat the Christians and to disturb the Christianity. So it is going on in Nepal. This is the new organization. So please pray that their evil plan will not success against our brothers and sisters in Nepal, and also Sister Salmina and the newborn baby and the rest of the pastors. Can you please lead us? मेरो प्रार्थना छ हजुर भन्नुस् मेरो प्रार्थना विषय छ मेरो पनि यो आउने महिना के भन्छ अन्तिम यो असोज अन्तिम मेरो पनि नानी हुनेवाला छ प्रार्थना गर्दिनु नर्मल हुनकोस् भनेर प्रार्थना गर्नु हरेकहरु परमेश्वर सुरक्षा दिनुभएको होस् भनेर Okay, thank you. And you please pray for Pastor Bikram wife also. Next month, Bikram wife, she also has a delivery. You can pray. Yeah, can you please lead us in prayer? Yes. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Yes, Lord. Thank you for this wonderful time together. Lord, I first lift up all these pastors and evangelists and their fellowships, their families, their homes. I ask you, Lord, first of all, to protect them. I ask for your supernatural divine protection, that you would post warring angels round about them, their families, their homes, their fellowship meeting places, anywhere they are, and the things that they're doing, Lord, their children especially. And I ask you also, Lord, to provide for them. Provide all their needs, as you told us in your word, that we don't have to worry about what we're going to eat, what we're going to drink, what we're going to wear, that you know we have need of all these things. I ask you to provide everything that these pastors and evangelists and their families and their fellowships need, Lord. I ask you also to prosper them, Lord, as they serve you faithfully, that you would prosper them and cause them to increase in influence, in power, even in goods and finance, that they can be used by you to propagate your kingdom, and that they can also live a healthy and prosperous life while they're here on the earth. Lord, we pray right now in Jesus' name for this woman
who has just given birth. We pray that you give her a full recovery, Lord. Salmina, I think is her name. Give her a full and healthy recovery, no complications, and that you would bless this child, that this child, we speak complete, perfect, divine health over her and over her child. Bless that home, Lord, and cause these people to experience your joy in this time, Lord. Let them have this moment of joy of bringing a new life into the world, I pray in Jesus' name. I also pray for this other pastor and the expecting wife there with that child, that you would also protect that womb and cause a healthy delivery, a healthy birth with no sickness or defect, a perfectly healthy child, Lord, in Jesus' name. And right now, we just cry out, Lord. We cry out for all our brothers and sisters in India, North India, especially Nepal, these regions where the devil seems to have a free hand to come against your people, Lord, and persecute your people and torture your people. And especially in this group, I curse that group in Jesus' name. You listen to me right now, Satan. I curse your group. Yes, I amen. curse it in Jesus' name. And I command it to wither and die. I command it to fall to the ground immediately, right now. I command your garbage to fall to the ground right now. I come against you, Satan. I come against you, spirits of darkness, you violent, cruel excrements of filth from hell. I come against you in the name of Jesus. I come against you with the blood of Jesus. I come against you with the word of God, and I come against you with the anointing of the Holy Spirit. And Lord, I ask for a miracle, just as you did for us in India last month, Lord, where you got a hold of the leader. You got a hold of the leader of that group that burned down that Christian village. You got a hold of this man in a dream, and you turned this man's heart around, Lord. We pray for a miracle here, that you would visit the leader or leaders of this group that are assigned to torture Christians and to destroy Christian fellowship. Get a hold of this government official, get a hold of these leaders of these bands of thugs, and one of two things: either they convert and they repent, or wipe them out. Yes. Wipe them out. Get them out. Get them off our people, Lord. Get them off our people in Jesus' name. The Lord rebuke you, Satan. The Lord rebuke you in Jesus' name. Yes. You retreat. You back up. You back off. You get lost. In the name of Jesus. Lord, as Jesus said, if I wanted to, I could call for legions of angels right now. Well, that's what we call for. In the name of Jesus, we call for legions of angels to descend upon these regions where your people are being unjustly persecuted and tormented and even killed. Legions of angels to descend upon these areas and do war with the evil spirits of the kingdom of darkness. And Lord, deal with these human beings and these Nephilim that are interceding on the earthly side for these spirits. Yes. So Lord, we just give this to you right now, and we trust you with it. And your word said, where two of us shall agree on earth as touching any one thing, we will have what we say. We can speak to this mountain of persecution and cause it to be rooted up and cast into the abyss where it belongs. In the Psalms, it says, one of us shall put 1,000 to flight. Two of us shall put 10,000 to flight. Well, we have like 30 people on this call right now, Lord. So I ask you right now in Jesus' name to descend, holy angels descend upon these places and avenge the faithful. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
थैंक यू डॉक्टर डैनी, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। God bless you. ओके, सबको गुड नाइट एन्ड सबैलाई बुधबार भेटौँला प्रभु यीशुको नाममा, सबलाई जय मसीह। Amen. God bless you all. ओके, थैंक यू, जय मसीह, जय मसीह। जय See you मसीह, next थैंक